Hello and welcome to this special broadcast from Lucknow from the majestic Gomti River front on a day when the Uttar Pradesh police has formed anti-Romeo squads in police stations, a key poll promise, and those shots will come up on your screen. Across the state, many teams of the UP police from police stations have panned out. A lot of them have gone and held people, spoken to a lot of boys who were standing outside colleges, etc. But we have also got reports from many districts where you could call it a case of police high-handed. We will also debate the fact whether this is more policing or whether this is more persecution. For all of that, we have a host of our guests here. Ghanshyam Tiwari represents the Samajwadi Party. Shalabh Mani Tripathi used to be our colleague, a journalist. Now he's switched sides to politics. But we are going to go to them a little later. I'm going to start by going to a few of these ladies here. Ma'am, could you just step forward? I just want to ask you, give us your name and tell us what you think about these anti-Romeo squads that the government had promised and had brought in. Okay, so hello everyone. My name is Devika Mathur. I'm a student of IIM Lucknow. So the recent anti-Romeo squad that the government has gotten, I probably as a student would not favor the movement by them because probably the country is progressing towards the new globalization, and I wouldn't say that it's a very nice positive move. It can be manipulated on various levels, and this the whole connection with the love jihad thing doesn't stand correct. So as a student, I would not believe that the anti-Romeo squad is a good thing to happen. All right, what is your name? My name is Stuti Pansari. What do you think? I think, if they have started this particular movement, so there might be some issues like they would have come across instances where people are eve-teasing or molesting the girls or harassing. And if it is there, then policing of such sort will give a kind of safety to the girls or security. So I think it's, let's wait and watch basically how the movement turns out to be. Yeah. So I think we have two interesting perspectives, both of them. One saying it's not very right, the other saying it's perhaps right. शलभ, आपके पास आना चाहूंगा. ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा कि बहुत जगह परसिक्यूशन वाली भी एक बात हो जाती है. आज ही हमने देखा, कल ही हमने देखा कि झांसी में एक ऑफिसर गई, वहां पे दो लोग बैठे हुए थे, उनको उठक बैठक करवा रही हैं. अब ये भी तो गलत बात है ना. नहीं, देखिए, बहुत साफ शब्दों में बताऊं कि इसका एक ही मकसद है कि जिन स्कूलों के बाहर जिन छात्राओं के साथ बदसलूकी होती थी, जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी, ये एंटी रोमियो स्क्वाड उनके लिए बना है. और बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि ऐसे गुंडे जिन्होंने ये तय कर रखा था कि वो बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देंगे. बरेली में घटना हुई, अलीगढ़ में घटना हुई, तमाम शहरों में हुई कि बच्चियों ने घर से स्कूल जाना बंद कर दिया. तो ये एंटी रोमियो स्क्वाड उनके लिए है. पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे गुंडों को ऐसी जगह पहुंचाइए जिस जगह के वो काबिल हैं, उनको जेल की सलाखों के भीतर भेजिए. और एंटी रोमियो स्क्वाड वो काम कर रहा है. मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता. Ghanshyam, are you convinced by that argument? देखिए, नई सरकार कामकाज कर रही है. उन्होंने कहा था वो अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर काम करेंगे. मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ सकारात्मक काम से अपना काम शुरू करते. इस सरकार की बुनियाद में एक विजिलेंटिज्म है जो दिखाई दे रहा है. अगर एंटी रोमियो स्क्वाड की पृष्ठभूमि में आप देखिएगा तो ये इन्होंने गुजरात में प्रयास किया और ये विफल प्रयास था. अगर आप एक जगह की विफल पॉलिसी को लेकर के दूसरे राज्य में लगाते हैं और उसको चुनावी नारा देते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा बिल्ड करते हैं और कोई तर्क नहीं देते हैं. मध्य प्रदेश में और राजस्थान में महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक पर कैपिटा क्राइम होता है. आप उसे रोक नहीं पाए. गुड़गांव का आज का पेपर देखिए, टॉप 3 हेडलाइंस है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार. यूपी में तो अभी शुरू हुआ है, जैसा शलभ कह रहे हैं कि इट्स जस्ट स्टार्टेड आउट हियर, सो व्हाई नॉट गिव इट अ चांस. अपराध हुए, वहां की जनता ने जनादेश दिया है. उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा कि कैसे महिलाओं के साथ घटनाएं हुई हैं. बुलंदशहर का गैंगरेप रहा हो, हाईवे का, चाहे बच्चियों के घर से बाहर न निकलने का मसला रहा हो, तो जनता ने जनादेश दिया. और हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड होगा और जो ऐसे लोग होंगे जो बच्चियों को परेशान करते हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे. हमने किया है. जी, I just want to go to a few other girls here. What is your name? Hi, my name is Devita. Devita, what do you think? You've seen the politicians speak about it. You've seen some other girls speak about it. Some are saying that there's a persecution thing. Some are saying that this has failed in other states. What is your take? Do you face harassment on a daily basis when you step out on the roads? No, I do not. Personally, मैंने कभी नहीं face किया है ये चीज. And I guess ये सरकार आने के बाद I guess आगे भी मुझे face नहीं करना पड़ेगा. Let's hope for something good. Like सबको जब चांस मिला है तो let's give him also a chance. But are you convinced by these anti-Romeo squads? Yeah, I am totally convinced. I am personally totally convinced कि ये हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है and आगे भी ऐसा होता रहना चाहिए. Ma'am, what is your name? What is your name? I'm Dr. Neelam Singh. I'm a gynecologist. What do you think about all of this now? I think if you look at the Ma'am, please. crime rate they were saying, I think look at the crime rate in UP and look at
the kind of incidences which have happened in the past, I feel that there are people who are antisocial and be involved in such incidences. But it's the question of implementation. So if we do not implement rightly anything, then there is a problem. So I think we should be very, very focused how to implement it and for whom it has been made. The intentions are good. Maybe poor implementation may bring in something which is not desirable. अखिलेश जी फ्रॉम द कांग्रेस हैज आल्सो जस्ट जॉइंड अस। अखिलेश जी, बहुत बातें आपने सुनेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे शलभ भाई कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि अच्छी चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में एंटी रोमियो स्क्वाड से प्रॉब्लम आ सकती है। घनश्याम कह रहे हैं कि आ रही है, बाकी स्टेट्स में भी ये फेल हो चुका है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी नई नई सरकार बनी है और एक दो दिन के ही किसी कृत्य पे सरकार के उससे को सर्टिफिकेट अच्छे या बुरे का नहीं दिया सकता है। इनका वादा था एंटी रोमियो बनाने का, बनाए, अच्छी बात है। लेकिन जो वुमेन्स पावर लाइन थी 1090, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ पे? स्पॉट पे होगा। वो जिसको देखेगा उसे पकड़ेगा। लेकिन बहुत से क्राइम या बहुत से परेशानियां महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को फोन से, क्लास में, बस में और चारों तरफ होते हैं। वो फिर कहाँ जाएंगी? क्या 1090 है कि नहीं है? तीसरी बात, पहले बीजेपी के लोग क्या आज के बाद, जो अभी तक भारत में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, छोटे को बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे देश की महिलाओं, लड़कियों के प्रति अपशब्द बोलते रहे हैं, और यही लोग चाहे वैलेंटाइन डेज हो, चाहे कोई और चीज हो, किस तरह से व्यवहार करते थे, वो क्या आज एंटी रोमियो बना करके क्या बताना चाहते हैं? इस समय पे हम इस पे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि पहले कुछ करें, देखेंगे हम, उसके बाद गुण दोष के आधार पे इन पे हम बात करेंगे। कैन यू जस्ट स्टेप फॉरवर्ड? अब यू फ्रॉम एमिटी, यू टोल्ड, आप लोग एमिटी से हैं। आपको क्या लगता है, दोनों तर्क सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के एक स्क्वाड की जरूरत है? ये भी सच्चाई है कि हैरेसमेंट और इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। आपके व्यूज क्या हैं इस पे? मेरा कहना है कि ये घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं और सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इस तरह के कदम उठाए उन्होंने। पर इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे काम करेंगी, ये टीम पूरी काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत त्रिपाठी है। त्रिपाठी, आपको क्या लगता है प्रशांत? जैसा कि अभी मैंने सुना कि एक भाजपा ने एंटी रोमियो पार्टी बनाई है और एंटी रोमियो स्क्वाड थानों में बने, थानों में बनाया है, और क्या कहते हैं, सपा ने 1090 का कराया था। लेकिन मैंने जैसा कि देखा है कि 1090 के टाइम में मतलब मैंने देखा कई बार कि वहां पर कंप्लेन होती है, बट वहां कोई एक्शन नहीं होता। मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है। ठीक है, तो जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है पुलिस स्टेशन वगैरह में, मुझे उसका देखने का इंतजार है कि क्या वाकई वो कितना कार्यरत होगा, वो मुझे देखना है। चलो, दो चीजें जो इतने लोगों ने बोली, घनश्याम के पास में जाऊंगा। एक तो सब लोग कह रहे हैं कि जैसे पहले जो हेल्पलाइंस थी उसको अगर और स्ट्रेंथन किया जाए तो सही है। दूसरी बात ये कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो इसमें विजिलेंटिज्म की भी बात आ जाती है, जैसे सब कोई कह रहे हैं, हमने देखा भी है कैसा। मुझे लगता है कि इतना जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप अगर आप देखिए तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि बहुत जगहों पे, बहुत शहरों में ये शिकायतें आई कि बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। बच्चियों को घर से बाहर निकलने के बाद स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर उनके साथ बदसलूकी होती है। 1090 मैं कह सकता हूं कि महिलाओं के लिए बनाया गया था, पर अगर आपको याद होगा, अभी जर्नलिस्ट हैं, कि वहां के एक बहुत बड़े अफसर पे इल्जाम लग गया कि वो जो वहां पे बच्चियां शिकायत करने आती थी उनके साथ बदसलूकी करते थे। तो उसके आगे बढ़ के किसी चीज की जरूरत थी, और इसीलिए भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। हमने वायदा पूरा किया है, और निश्चित तौर पर मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग भी हैं जो महिलाओं के खिलाफ कोई विचार रखते हैं, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। घनश्याम, आर यू कन्विंस्ड बाय दिस आर्गुमेंट? देखिए, मैंने जैसा कहा है कि जो भी मैंने अध्ययन किया है लोक नीति का, पब्लिक पॉलिसी का, अगर आप नकारात्मक सोच से कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसके आधार में अच्छे तथ्य नहीं डालते हैं, कोई प्रूफ पॉइंट नहीं डालते हैं वो कहीं और सफल हुई या नहीं हुई, आप पुलिस वालों को एम्पावर करते हैं, उनको एक नकारात्मक नाम देते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, और कॉलेजों में छोड़ देते हैं बिना कोई ऑपरेटिंग मैनुअल के कि किसी को भी पकड़ो, किसी को कान पकड़ के उठक बैठक कराओ, किसी को कुदवाओ, और उसके आधार पर फिर और सारे लोग हैं, बहुत सारे, मान लीजिए कि अन्य संस्थाएं हैं जो संघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय नए मुख्यमंत्री जी के साथ काम करती हैं, वो स्वयं को एंटी रोमियो स्क्वाड का स्वरूप देने लगे और हर किसी को रोकने लगे। आज जो चीज एंटी रोमियो स्क्वाड से शुरू हुई है, अगर कल कहने लगे कि महिलाओं को ये कपड़े पहनने चाहिए, ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कहाँ रुकेगा? आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो टू समवन हु इज विद द हिंदू युवा वाहिनी, ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट आदित्यनाथ स्टार्टेड। ये घनश्याम ये बात कह रहे हैं कि भाई ये पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, अब कल को आप लोग भी रोड पे चलने लगे, आप भी ये कहने लगे मॉरल पुलिसिंग तो होती है, वैलेंटाइंस डे के दिन होती है, इधर होती है, उधर होती है, तो फिर इसका अंत कहाँ है? पुलिस को आप विजिलेंटी में तो नहीं बदल सकते।
बिल्कुल इनकी बात से मैं जो है बिल्कुल भी सहमत नहीं। अभी जैसे अखिलेश जी हमारे जो बड़े भाई ने ये बात बताई कि 1090 हेल्पलाइन सेवा थी जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित के लिए बनाई थी। मैं ये बड़े भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब उस महिला ने हाई कोर्ट में जाके FIR दर्ज, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि FIR दर्ज हो, गायत्री प्रजापति कहाँ 1090 की कहाँ उस समय से सवाल का जवाब नहीं दिया एक सच्चे नेता की तरह। आपने ये नहीं बताया कि विजिलेंटिज्म कल को जब विजिलेंटिज्म अगर स्ट्रीट्स पे स्प्रेड हो जाता है, आप लोग भी पुलिस से जाने लगते हैं, फिर क्या होगा? नहीं पुलिस सर मैं आपकी सवाल को मुझे थोड़ा ब्रीफ करिए, मैं आपको बताता हूँ, उस चीज का जवाब मैं देता हूँ। जरा आप मुझे ब्रीफ डिटेल में बताइए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कल को आप लोग भी पुलिस के साथ जाने लगे तब? नहीं तो हम लोग पुलिस के साथ, पुलिस अपना काम पूर्ण रूप से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार आई है और अगले जो है आप 5 साल छोड़िए, अगले 2 महीने के अंदर आप देख लीजिए पूर्ण रूप से जो है हमारी महिलाएं जो सुरक्षित रोड पे घूमेंगी, जो पिछले 10-5 सालों में ऐसा। I want to go to this lady here, ma'am. You've heard a lot of arguments here. Are you convinced by what either side is saying? One side is saying कि भाई एकदम सही है, the other side is saying गलत है. What are your views? Okay, so we females, we go out according to a rape schedule. Sounds very bizarre, but this is the reality. यहाँ जाना है इस कॉलोनी में तो ये कपड़े पहन के, हमें निकलना है 9 बजे, उसके पहले घर आए. So this is a rape schedule we are following. So this is very important. Though this seems to be very violent initially, but this violence is very important to keep a check. But I'd like to ask you, suppose you want to go with a boy, a friend of yours, in a park. Yeah. पुलिस वाला आता है कहता है आप क्या कर रहे हैं, उठ के जाइए यहाँ से, फिर? Yeah, that is the part of implementation we are talking about. It should be very balanced and sensitive. All right. Ma'am, I want to come to you. What's your name, ma'am? Manisha Tripathi. Manisha, these younger people are saying that it is important. A lot of them are saying the implementation needs to be ठीक से होना चाहिए. What do you feel? Yes, obviously, जो कानून है वो सही से इम्प्लीमेंट होना चाहिए. Whereas if we see जहाँ एक बोर्ड लगा हो कि यहाँ मत थूकिए, जुर्माना लगेगा, वो बोर्ड कोई नहीं नोटिस करता. इफ अ फाइन इज बीइंग इम्पोज्ड, अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, पनिशमेंट तुरंत मिलती है, तभी काम होता है. अगर कोई गुंडा राज, जैसे अगर हम दबंग मूवी की बात करें, तो अगर दबंग कोई आके रूल करेगा तो आई गेस लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा सही होगा. So interesting perspectives here in the first half. A few of them have spoken, a few of them will speak after this break. But a very lively and interesting debate here about these new anti-Romeo squads that have been formed in police stations. We'll come back after the break and we will get more perspectives from this very bright audience here.